कैसे हो class 12 science? Fine. Now, in this video, we are going to discuss the LCR series circuit. LCR, L stand for the inductance, C capacitance and R resistance. L, C capacitance and resistance. All these are connected in a circuit in which AC supply is there. AC voltage supplies LCR. We are going to discuss what is the phase difference of the net voltage and the current, and we are going to discuss the different conditions for LC circuit, for CR circuit, what are the different conditions for the resonance circuit. Like all these things we are going to discuss in this video. Okay. LCR in series across alternating supply, phasor diagram method. L inductance or inductor, C capacitance or capacitor, R resistance or resistor. These LCR are connected in series. ये देखिए, all these are in series and alternating supply is there. Potential, RMS value of the potential is supplied, domestic, which I told you. Now here I have assumed that VL is the potential difference across the inductor and VC is the potential difference across the capacitor, and VR is the potential difference across the resistor, right? V is equal to V naught sine omega t. Now this V is equal to V naught sine omega t, which I told you here. So let V be the RMS value of alternating EMF or voltage to LCR series circuit. LCR series circuit. Just try to see how we are going to write it. What is here? The potential VL. The first is your VL. VL is the potential difference across, we have assumed this, across L, and that is potential difference is equal to I. I have assumed the I is the amount of current, maybe in this direction, I into resistance. V is equal to IR hota hai. So resistance is, we have taken it XL. We have discussed XL, the inductive reactance, in the last video also. So I into XL. That is number one. Potential difference across VL or across inductor. As we know, the voltage leads the current I by 5/2. ये हमको तो मालूम है कि पोटेंशियल, अगर एक इंडक्टिव सर्किट है, potential always ahead, leads the current by pi/2 phase angle. Therefore, and so that this is the first information, and after that we see this potential difference across C capacitor is equal to I x C. This is number 2. VC means the potential difference across the capacitor, I into XC. What is XC? Also we know that capacitive reactance, VC is equal to I into IC, XC. As according to the concept which we know the voltage lags
यहाँ पर इस केस में अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर है उस केस में वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई बाई टू फेज। ये भी हमको मालूम है, ये प्रीवियस नॉलेज से प्रीवियस वीडियो से ये दोनों पार्ट जो है दैट वी नो। एंड थर्ड पार्ट हमको क्या मालूम है, वी आर आई इंटू आर, potential difference across the resistor, I into R is the resistor, that is number 3. And in this way we know that in case of purely resistive circuit, so that particular part also we have to write. We know in this case both voltage and current are in phase, means phase difference is 0, means phase difference क्या 0। ये तीनों इंफॉर्मेशन हम लोग को पहले से मालूम है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नाउ कम्स टू द फेजर डायग्राम। अब यही वाला चीज को फेजर डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। सो जस्ट टू सी, नाउ कम्स टू द हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन of I, VL, VC, VR in phasor diagram। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखिए इसको। Here we have to draw this is a say x-axis origin, and let us assume that this is going to represent the I current। तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, I को। और फेज हम रिजल्टेंट वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रहे हैं, दैट रिजल्टेंट वोल्टेज। ये हो गया फेज और फेजर वेक्टर। यही वाला कैसे घूमता है ये फेजर, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द ओन एंगल, एंड लेट दिस एंगल इज फाई। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, क्या रिप्रेजेंट करना है, वी एल, वी सी, वी आर, आई हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं दिस ओ एक्स, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो वी आर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग पहला चीज यहाँ से थर्ड से देख रहे हैं कि वी और आई दोनों इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोथ आर इन फेज। तो यही वाला पार्ट दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट वी आर, ये भी वही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि दोनों का फेज सेम है, करंट एंड वी आर का। देखिए फ्रॉम दिस थर्ड पार्ट ये क्लियर हो गया। नाउ वी एल जो है वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज आगे कितना पाई बाई टू, तो करंट ये है ओ एक्स, इससे पाई बाई टू ऊपर, मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा वी एल को, ये पाई बाई टू। लीड्स मतलब हमेशा पॉजिटिव किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। लीड्स ज़्यादा हो रहा है, इधर आएंगे क्लॉकवाइज तो डिक्रीज होता है। तो ये वी एल को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद वी सी को भी रिप्रेजेंट करना है। तो वी सी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द वी सी। इन केस ऑफ वी सी वोल्टेज लैग्स द करंट तो ये फिक्स है आई, इससे वोल्टेज कम है कितना, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू कम का मतलब क्या है, ये पाई बाई टू कम मतलब क्लॉकवाइज।
तो ये रिप्रेजेंट करेगा VC को। ये पूरा क्लियर होना चाहिए, कौन सा VL हुआ, कौन सा VC हुआ और क्यों हुआ। ये IVR, ये बिल्कुल एकदम क्लियर। एंड V इज द रिजल्टेंट फेजर। ओके, नाउ ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा ऐसे करके। यहाँ पर अगर हम एक ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये -y नेगेटिव y, तो एज पर द लॉजिक ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, नाम दे दिए यहाँ पर A, इसको दे दिए B, इसको दे दिए पॉइंट को C जहाँ पर मिला। OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I एंड VR। OC इज रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VL को। और ये अगर ये वाला यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट दे दिए D, तो OD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VC, राइट। अब यहाँ पर जो और एक समझने वाली बात है कि VC और VL को देखिए, VC एंड VL, द एंगल बिटवीन VL एंड VC इज कितना, 90 + 90 180। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम, ऐसा लिख देते हैं, फ्रॉम द डायग्राम phasor diagram, it is clear that VL and VC are in opposite phase. अपोजिट फेज मतलब फेज एंगल कितना, 180 डिग्री। और बड़ा कौन सा है, डेफिनेटली VL इज ग्रेटर देन VC। क्यों, वाई VL इज ग्रेटर देन VC, बिकॉज हियर VC is this and VL is this. We are going to move in this way, anti-clock. So definitely VL is greater than VC. ना अभी तक हम लोग क्या देखें कि VL is greater than VC. अब now see the phasor diagram again. This is a phasor diagram. ये VR था, ये VL को रिप्रेजेंट कर रहा है, and this is VC. अब as VL is greater than VC, तो नेट कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है यहाँ पर, उसका AB इज इक्वल टू OC। OC नेट कितना होगा, OC नेट होगा VL माइनस VC। VL माइनस VC इज इक्वल टू नेट, यहाँ से यहाँ तक नेट पोटेंशियल, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दिया, कितना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है VL माइनस VC को। अब यही वाला चीज अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कहाँ है OB स्क्वायर, ये देखिए, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। OB रिप्रेजेंट कर रहा है V को, तो V स्क्वायर वो अंडर रूट कर देंगे। OA क्या है, VR स्क्वायर प्लस AB कितना है, VL माइनस VC इसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर था उसको अंडर रूट कर दिया, ये आया ना। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। VR का वैल्यू हम लोग जानते हैं I इंटू R है, तो पूरा का स्क्वायर प्लस VL का मतलब I इंटू XL माइनस I इंटू XC स्क्वायर अंडर रूट
ये हो गया ऐसा इज इक्वल टू, अब आई स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, फिर अंडर रूट में से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो वो आई को हम नीचे कर देते हैं, वी बाई आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर अंडर रूट। ये जो v बाई आई आया, अगर ख्याल होगा ओम्स लॉ में v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो v बाई आई इज इक्वल टू आर मीन्स रेजिस्टेंस। ये v बाई आई एक तरह का रेजिस्टेंस है। ये एक यहाँ पर v बाई आई जो है ये रेजिस्टेंस, लेकिन ये इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस ना तो रेजिस्टेंस का है, ना कैपेसिटर का है, ना इंडक्टर, ये कंबाइंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इम्पीडेंस z क्या है, इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। LCR को सीरीज में लगाने पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा दैट इज द इम्पीडेंस। इसको क्या ये भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आया इम्पीडेंस का क्या इक्वेशन, important equation. Impedance in LCR series circuit is the under root of R square plus XL minus XC whole square. अब हम लोग यहाँ पर, ये तो हुआ इम्पीडेंस, इतना रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है। अब हम लोग ये फेजर डायग्राम में फिर से एक बार हम लोग लेके आएंगे। हम देखना चाहते हैं ये जो फेज है, ये जो कितना फेज है, फाई कितना है, करंट से कितना आगे है, कौन रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ गया। तो ये निकालने के लिए हम लोग अगर यहाँ पर डायरेक्ट कर दें, यहाँ पर हम tan का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू P बाई बी ए बी बाई ओ ए। तो यहाँ पर tan फाई इज इक्वल टू ए बी कितना था, वी एल माइनस वी सी बाई वी आर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं आई के टर्म में सबका वैल्यू, तो आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी बाई आई इंटू आर। तो आई कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा इधर ही लिख देते हैं ऐसे यहाँ पर, तो फाई फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। इतना फेज डिफरेंस हो रहा है LCR सीरीज सर्किट में, किसके बीच, I एंड रिजल्टेंट V के बीच, ये फेज डिफरेंस आया। ओके, ये फेज डिफरेंस है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ना, अभी तक हमको क्या मिला, I इज इक्वल टू इतना और tan फाई इज इक्वल टू इतना, ये दो एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लिए ना। स्पेशल केसेस, ये स्पेशल केस क्या है, अगर मान लेते हैं एक्स एल, मान लेते हैं वो एक ऐसा सर्किट है, ये तो तीनों के लिए था, आर एल और सी के लिए, ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। तो Z कितना हो जाएगा, X, इसका मतलब एक्स एल का टर्म निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोलेंगे कि RC सर्किट, RC सर्किट का ये हो गया इम्पीडेंस। अगर मान लेते हैं
मान लेते हैं मेरे पास L है और रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और रेजिस्टर है, तब उस केस में Z क्या हो जाएगा? C तो नहीं है, C नहीं है मतलब क्या? XC गायब, तो ये हो जाएगा R² प्लस XL स्क्वायर। ये इम्पिडेंस हो जाएगा किसका? LR सर्किट का इम्पिडेंस। ठीक है। थर्ड केस, अगर इफ XL इज इक्वल टू XC हो जाए, अगर ये XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा? Z बिकम R ओनली। ये दोनों हट गया, दोनों सेम हो गया, केवल R² मीन √R। दैट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये क्या हो जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। और XL इज इक्वल टू XC। अब थोड़ा सा और विस्तार से जाते हैं। XL क्या है? हम जानते हैं XL इज ओमेगा L। XL का वैल्यू कितना? ओमेगा L। और XC हम लोग पढ़ चुके हैं 1/ωc। इसको थोड़ा सा और चलते हैं तो ω² इज इक्वल टू 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू √1/√LC। और ओमेगा का वैल्यू होता है 2πν इज इक्वल टू 1/LC। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC। दिस इज योर, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन और रेजोनेंस कंडीशन, ये रेजोनेंस कंडीशन। और न्यू क्या हुआ? न्यू इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी in LCR series circuit. That's important. Okay. तो फेज एंगल कितना निकला था मेरा? अभी निकला था tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, राइट। अब 3 केस तो वहाँ पर बताए, अब ये केस नंबर 4, ये अलग तरह से ये हम बता रहे हैं कि इफ XL इज इक्वल टू XC, अगर दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर वाला टर्म 0, तो tan phi क्या हो जाएगा? पूरा 0, मीन्स phi इज इक्वल टू 0। और फेज एंगल कहाँ पर 0 होता था? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। सर्किट क्या बन गया? प्योरली रेजिस्टिव, केवल रेजिस्टिव सर्किट। हम लोग पढ़े थे आगे में कि अगर प्योरली रेजिस्टिव कब होता था, और प्योरली रेजिस्टिव के केस में V और I दोनों एक ही फेज में होता था। तो यहाँ पर फेज एंगल 0 में, एक ही फेज का मतलब फेज एंगल 0, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। और अगर इफ XL इज ग्रेटर देन XC, अब देखिए यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन से XL XC से बड़ा हो तो tan phi कितना हो जाएगा? समथिंग XL इज ग्रेटर देन दिस, तो ये tan phi क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मीन्स phi इज पॉजिटिव। phi क्या हो जाएगा? phi मीन्स फेज एंगल, दैट बिकम्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब बनता है? जब इंडक्टिव सर्किट होता है। So the circuit becomes inductively dominant। ये एक वर्ड यूज किया जाता है, इंडक्टिवली डोमिनेंट। मीन्स इंडक्टेंस
जैसा, एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टेंस है, उस केस में उस तरह का ये सर्किट बिहेव करता है. एंड 6(1) इफ XL इज लेस देन XC, अगर XL XC से कम है, मीन्स X, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं XC बड़ा है XL से, तो XL अगर बड़ा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर बिकम्स निगेटिव, सो tan phi becomes negative, and tan phi becomes negative means phi becomes negative. So therefore this type of circuit behaves as capacitive dominated या डोमिनेंट. कैपेसिटिव डोमिनेंट मीन्स कैपेसिटर केवल जब होता था उस केस में जो कंडीशन आता था वही निगेटिव, क्योंकि फेज एंगल क्या हो रहा है, निगेटिव है, तो उस केस में ये कैपेसिटिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ये इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टेंस. ओके, this is a very important LCR series circuit across the alternative supply और the phasor diagram. ये हो गया सर्किट और ये फेजर डायग्राम. ये क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ समझिए. VR, I, VL, क्योंकि इस तरफ जा रहा है, VL मीन्स पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द करंट, सो इसीलिए कितना π/2 अहेड है. फेजर जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉक जाता है तो पॉजिटिव, और नीचे आता है तो क्या हुआ, निगेटिव. नीचे मतलब क्लॉकवाइज, तो इसीलिए यहाँ पर BC ये इस तरह से हम लोग करते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट.